हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन लिटरेरी क्रिटिसिज्म फॉर जीआईसी लेक्चरर पीजीटी एंड टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्नल्ड्स वर्क एज अ लिटरेरी क्रिटिक बिगन विद द 1853 with the publication of which work? Preface to the poems. Option number A is correct answer. Who describe Arnold's preface to the poems as oddly stiff and graceless when we think of the elegance of his later prose? George Watson, T.S. Eliot, Northrop Frye, या फिर Tennyson? So, the correct answer is George Watson. Arnold's lecture on translating Homer were published in 1860. Option number B 1861, option number C 1862 and D 1863. So the correct answer is 1861. Option number B is right. So our next question is Arnold's last word on translating Homer published in 1862. ठीक है, यहाँ पर लास्ट वर्ड्स दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों ही अलग डिफरेंट है। नेक्स्ट है, इन विच एसे आर्नल्ड रोट दैट without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. So, उनके कौन से ऐसे में ऐसा लिखा था? द स्टडी ऑफ पोइट्री, द क्रिटिकल पावर, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, द चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स एंड ऐसे। सो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है ए, द स्टडी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नल्ड थॉट द वर्क्स दैट हैड बीन प्रूवन टू possesses both high and truth and high seriousness such as those of and could be used as a basis of comparison to determine the merit of other works of poetry. हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर एंड मिल्टन, बी है मिल्टन एंड ड्राइडन, सी इज ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन. So the correct answer is option number A, Shakespeare and Milton. Our next question is, which work of Arnold is famous for the term he popularized for the middle class of English Victorian era population, Philistines? So Culture and Anarchy, Literature and Dogma, and option number B is on translating Homer, या फिर option number D, none of these. क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर एंड एनार्की. नेक्स्ट है, इन विच वर्क आर्नल्ड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ लिबरल एंड अ बिलीवर इन कल्चर एंड टेक्स अप what historian Richard Bellamy calls the broadly Gladstonian effort to transform the Liberal Party into a vehicle of a political moralism. Option number A, culture anarchy, literature and dogma, on translating Homer, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वह है कल्चर एंड एनार्की. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. यहाँ पर जो है शुरुआत में क्या है? ब्लैंक है, ठीक है. डैश वर humdrum people, slaves to routine, enemies to light, and who believed that England's greatness was due to her material wealth alone and took little interest in cultures. So इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द अरब्स, द फिलिस्टीन्स एंड नॉन कन्फर्मिस्ट्स. ऑप्शन नंबर डी, लिबरल. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्टीन्स. क्वेश्चन नंबर 10 है, who remained a loyal liberal throughout his life, and in 1883 William Gladstone awarded him an annual pension of £250 as a public recognition of service to the poetry and literature of England. So without any doubt इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? मैथ्यू आर्नल्ड. Our next question, who was credited in 1887 with coining the phrase new journalism, a term that went on
to define an entire genre of newspaper history, particularly Lord Northcliffe's turn of the century press empire? मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस एलियट, जॉन ड्राइडन या फिर टैनी सन? सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Who defined religion as morality touched with emotion? किसने जो है रिलीजन को डिस्क्राइब किया है एज मोरालिटी टच्ड विद इमोशन? आर्नल्ड, एलियट, ड्राइडन या फिर टेनिसन? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नल्ड। Who wrote whatever his achievement as a critique of literature, society, or religion, his work as a poet may not merit the reputation it has continued to hold in 20th century. Arnold is at his best a very good but highly derivative poet, unlike Tennyson, Hopkins, Swinburne, and Rossetti, all of who individualize their voices. तो ऐसा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में जो है इनके ऑप्शंस क्या दिए हमें? हैरोल्ड ब्लूम, एलियट, ड्राइडन या फिर टेनिसन? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा हैरोल्ड ब्लूम ने ये स्टेटमेंट दी है। हु एडमायर्ड आर्नल्ड इन द वर्ड्स? किसने कहा है? विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ मैरो, मैथ्यू आर्नल्ड्स पोएट्री इज अरेस्टिंग फ्रॉम कवर टू कवर. ही इज द great amateur of English poetry. He always has the air of an ironic and urban scholar, chatting freely, perhaps a little indiscreetly, with his not very respectful pupils. जॉन काउपर पाउस, जॉन ड्राइडन, एलियट या फिर टेनिसन? सो फ्रेंड्स इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on translating Homer, published in January 1861, was a printed version of the series of public lectures given by Matthew Arnold as a. तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 3rd of November 1860 to 18 दिसंबर 1860 तक, या फिर प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट कैम्ब्रिज में थे, या फिर ऑक्सफोर्ड या कैलिफोर्निया में, या फिर टीचर एट हिज फादर्स स्कूल फ्रॉम 13 नवंबर सो? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो उस टाइम पर ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आर्नल्ड्स पर्पस ऑन ट्रांसलेटिंग होमर वाज टू डिस्कस, क्या पर्पस था? हाउ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अप्लाइड टू वर्जिल्स एनिड एंड टू द ट्रांसलेशन of a classical text. How his principles of literary criticism applied to the two Homeric epics. या फिर थर्ड, how his principles of literary criticism applied to Shakespeare plays and to the translation of classical text. या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है इसका जो है हाउ his principles of literary criticism applied to the two Homeric epics and to the translation of classical text. तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। Which of the following translations are discussed in Arnold's on translating Homer? जॉर्ज चैपमैन्स ऑडिसी, अलेक्जेंडर पोप्स इलियाड, विलियम कॉपर्स इलियाड, या फिर ऑप्शन नंबर सी F.W. न्यूमैन्स इलियाड, या फिर एंड F. विलियम मार्जिन्स होमरिक बैलाड्स, है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है इसमें जो है डिस्कशन करा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि जीआईसी लेक्चर में स्पेसिफिकली मेंशनड सिलेबस है, तो उससे जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, और इससे अभी बहुत तरह के इनके जो ये क्रिटिसिज्म का वर्क है बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने आज थोड़े से ही करे हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।